مرزا صاحب پروگرام کے آغاز میں آپ کو دعوت شیراز ہے، جامن کھائیے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، کیا دعوت شیراز کی ہے صبح صبح آپ نے۔ لوگ ناشتے کا پوچھتے ہیں، کوئی حلوہ پوڑی، کوئی لسی، آپ یہ جامن لے کے آ گئے ہیں۔ یہ دعوت شیراز موسم یہ موسم آیا، موسم تیرے میرے میرے تیرے میرے تیرے تیرے میرے پیار کا موسم۔ یہ کیسا پیار ہے یار، جس میں جامن نہیں آیا ہے، کچھ اور نہیں آیا۔ مرزا صاحب ڈھلتی عمر میں اس کا استعمال زیادہ کیا کیجیے، صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور بالخصوص جو شوگر پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ بات اکثیر ہے یہ۔ بڑی کرامت بات کیا ہے، ایک نایاب چیز ہے شوگر پیشنٹ کے لیے جانے۔ یہ جامن جو ہے یہ ناظرین آپ بھی ضرور یوز کیجیے، اگر آپ میں کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو اس کو سجیسٹ بھی کیجیے۔ ہاں جناب، تو آداب سے بے نقاب نیوز ہمارا چینل ہے، اور اس پر A20 ڈائلاگ لے کے حاضر ہوا کرتے ہیں، اے عدیل مرزا اینڈ می بی یعنی بالم۔ مرزا صاحب آج سے چونکہ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کا بخار تو اب وہ ختم ہو گیا ہے، ہم نے ماتھے پہ پٹیاں رکھی تھی ٹھنڈے پانی کی، اتر گیا ہے، تو وہ اب بخار اتر گیا ہے۔ لیکن ہم تو ظاہر ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے، ہم نے اسے روزمرہ جاری رکھنا ہے۔ آج سے جیسا آپ چاہتے تھے ہم ویسا ہی اس پروگرام کو اب 4 موضوعات اس کے ہم رکھیں گے۔ ابتدا کیا کریں گے ہم اس کی دین و دنیا کی بھلائی سے، اللہ اور اللہ کے رسول، کتاب قرآن مجید، اللہ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یا ان کے کسی قول سے، دین سے شروع کریں گے۔ اس کے بعد میں پھر جو ہاٹ ٹاپک ہے پاکستانیوں کا، سیاست، اس پہ جو پھڑکتے ہوئے موضوعات ہوں گے ان میں سے کسی کو چن کے اس پہ بات کریں گے۔ پھر جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں ان کی بات کریں گے، اور آخر میں پھر یہ کھیلنا کودنا بھی زندگی کے لیے بہت لازمی ہے، تو پھر ہم اسپورٹس کی لاسٹ میں ضرور بات کیا کریں گے تاکہ اس کی بھی چاشنی جو ہے وہ شامل ہو۔ تو مرزا صاحب دین و دنیا کی بھلائی، دین کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے، بسم اللہ۔ اچھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتَعْصَمُوا بِحُبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ پاک نے اپنی قرآن میں ارشاد فرمایا، وَتَعْصَمُوا بِحُبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو۔ بے شک۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان نبی بھی ہے، یہاں آپ کے اپنے ناظرین کو بتا دیں۔ بے شک بے شک۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ فرمایا جی تو اس میں کہا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک اپنی سنت۔ اب ان دونوں چیزوں کو اگر اکٹھا کر کے ان کے سیاق و سباق پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے تفرقے سے بچنا ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام، اللہ کی رسی یہ ہے، اس کو ہم نے مضبوط، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی اپنے آخری خطبہ میں، فرما دیا کہ اللہ کا قرآن اور میری سنت جب آپ مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو آپ فرقوں میں نہیں پڑو گے، آپ خسارے میں نہیں جاؤ گے۔ بے شک، زبردست بات کی۔ تھوڑا سا جو ہے وہ تفرقہ آ جاتا ہے جب ہم اپنی بات کرتے ہیں اور پھر اس میں اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے، پھر ہم تھوڑے فاصلے کر لیتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے ایک اچھی معاشرت کے لیے کہ اپنی بھی کہیں اور کسی اور کی بھی سنیں، اور اس کو اپنی کہنے دیں، آپ اپنی کہیں۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک تو جو ہے اللہ کی کتاب، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اہل بیت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ جو ہے ایک مسلک کی کتابوں میں اور ان کے ہاں یہ روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک میں آپ کے درمیان میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور دوسرے میرے اہل بیت، اور آپ کی جانب سے یہ ہے کہ قرآن اور سنت۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، اور بہت شکریہ مرزا صاحب کہ آپ نے جو ہے وہ یہ 4 ٹاپک جو ہے وہ چنے ہیں، کیونکہ آپ میرے ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں تو مجھے آپ کا جو ہے وہ آپ کے کہنے پہ چل رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سیاست کے طرف۔ مرزا صاحب پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے، مہنگائی خاص طور پہ یہ جو
बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, यार इन्होंने चीखें निकाल दी हैं आवाम की। लोगों को बिजली के बिल्स देख के, गैस के बिल्स देख के हार्ट अटैक आ रहे हैं। लोग जो है यहाँ तक सोचने पे मजबूर हो गए कि क्यों ना हम दोबारा से जो है वो पत्थर के दौर में चले जाएं और इन तमाम चीज़ों के कनेक्शंस जो हैं वो कटवा दें। आपको याद है कि कहा गया था कि अगर दरिया के किनारे कोई कुत्ता भूख से मर जाए तो उसकी बाज पुरस उम्र से होगी। जी, ये रियासत किसका के खलीफा से, रियासत के खलीफा थे जी। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और एक जगह मैंने पढ़ा है कि जब आपका विसाल हो गया तो तकरीबन उसके 8 साल बाद एक शख्स को ख्वाब आती है। जी जी, ख्वाब में देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक पसीना पूछ रहे हैं। वाह, तो सवाल आया कि पसीना पूछ रहे हैं, ये जन्नत के सरदारों में से जो सरदार हैं। तो जवाब मिला कि मैं अपनी खिलाफत का हिसाब दे रहा था गुज़श्ता 8 साल से। ये हज़रत उमर फ़ारूक की बात कर रहा हूँ। वो हिसाब दे रहे हैं अपना गुज़श्ता 8 साल की खिलाफत का। हुक्मरानों, आप उनके पैरोकार हो, वही निज़ाम लेके चल रहे हो, आपने क्या हिसाब नहीं देना? 25 करोड़ आवाम इस वक्त सर पर हाथ रख के वो रो रही है आपके बिजली के बिलों की वजह से। आप यहूदो अनूद जो हैं उनके इशारों पे, उनकी हदायत पे और उनकी वजह से सिर्फ अपना चंद मिलियन का वो कर्ज़ा लेने के लिए, चंद अरब रुपए लेने के लिए, वो भी अपनी अय्याशियों के लिए लेते आप हो, खाते आप हो, उसका कर्ज़ा उतारते हम लोग हैं। पूरी दुनिया में होता है ऐसा है कि अमीर टैक्स देता है, गरीब को रिलीफ मिलता है। ये दुनिया का वैध मुल्क है जहाँ गरीब टैक्स देता है और अमीर उन टैक्सों पे पलता है। ये निज़ाम कब तक चलेगा? मिर्ज़ा साहब, ये निज़ाम तब तक चलेगा जब तक आप हम उठ के नहीं खड़े होंगे, जब तक हम लोग जो है ये जो जंजीरें जिनमें हम जकड़े हुए हैं, ये जो कैदियों की, ग़ुलामों की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, तब तक जो है जब तक हम सर नहीं उठाएंगे तब तक। देखिए, सिंपल फार्मूला है भाई। आप मिसाल के तौर पे किसी से कर्ज़ लेते हैं तो क्या आपका कर्ज़ मुझ पे लाजिम होगा कि मैं दूं? आप ही नहीं देना है ना। तो भाई ये जो हमारे हुक्मरान बने हुए हैं, जो दरअसल हमारे मुलाजिम हैं, हमारी आसानियों के लिए किसी को हम चुन के और किसी को तनख्वाह पे रखा हुआ है हमने, और इनकी तनख्वाहें हम अपना पेट काट के देते हैं। हम अगर एक साशे लेते हैं सर धोने के लिए, नहाने के लिए, शैम्पू का साशे, उस पर भी हम टैक्स देते हैं। हम नमक की पुड़िया लेते हैं, उस पर भी टैक्स लेते हैं। हम माचिस की डिबिया ख़रीदते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। ये टैक्स किस लिए हैं? इसलिए है ना कि हम इनको पालते हैं। और ये हमसे इंतकाम किस बात का ले रहे हैं? कर्ज़ इन्होंने लिए, चुकाएं हम क्यों? अगर कोई इस मुल्क का वाली वारिस है, कोई कहता है कि जी मैं इस मुल्क को चला रहा हूँ, तो मैं आज उससे दस्त बस्ता, मैं हाथ जोड़ के उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आपको अल्लाह को जान देनी है, आप भी जवाब दें अल्लाह के सामने। ये भूल गए आप कि आप मुझे भी जवाब दें, एक आम आदमी को पाकिस्तान के जवाब दें। ये भूल गए आप, क्योंकि ताकत है इस वक्त आपके पास, इक़्तिदार है आपके पास। उसके नशे में आप भूल गए कि आप मेरे मुलाजिम हैं। आपने मुझे अपना ग़ुलाम और हकीर जान लिया है। लेकिन एक ऊपर बैठा है जिसके पास एक ना एक रोज़ हम सब ने हाजिर होना है और हम सब ने अपना अपना जवाब देना है। वहाँ क्या मुंह दिखाएंगे आप? कैसे रब के सामने खड़े होकर कहेंगे कि आपको जो जिम्मेदारियाँ दी गई थी आपने उनका हक़ अदा किया? तो दोस्तों, हमारा दूसरा और तीसरा टॉपिक जो था सियासत और माशरत जी, और दोनों ही तकरीबन हमारे ना इसी सवाल में आ गए। अब चौथा हमारा जो टॉपिक आपने बालम साहब ने आपको बताया था वो है स्पोर्ट्स। जी, T20 वर्ल्ड कप अभी इख्तिताम पजीर हुआ है। क्रिकेट का बुखार तो आस्ता आस्ता उतर रहा है, उतर जाएगा, लेकिन कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना उसके, या कुछ ये कह लें कि आफ्टर शॉक्स जी, जी, वर्ल्ड कप के अभी भी चल रहे हैं, वो ज़रा रोशनी डालेंगे। बालम साहब आपको ज़रा स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, आपको पता ही है, आपको भी मज़ा आता है, मुझे भी सुनने में इनका मज़ा आता है। तो ओवर टू बालम साहब। मिर्ज़ा साहब, सुपर 8 का मरहला था
पाकिस्तान की टीम तो खैर इब्तदाई मरहले में नॉकआउट हो गई थी और पाकिस्तान आ गई थी, लेकिन जो सुपर 8 में टीमें पहुंची थी तो किसी वेबसाइट ने, इंटरनेशनल वेबसाइट ने, स्पोर्ट्स की वेबसाइट ने एक रेटिंग जो है और रैंकिंग कह लीजिए इन 8 कप्तानों की रैंकिंग जारी की है, रेटिंग जारी की है। उसमें नंबर 1 तो जाहिर है कि जो टीम वर्ल्ड कप जीत के गई है उसका कप्तान रोहित शर्मा ही होगा नंबर 1। लेकिन नंबर 2 पे आप किसको कहते हैं, कौन होगा नंबर 2 पे? कैप्टन की वजह, जी कैप्टन की लिहाज से मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया का होना चाहिए। अरे साहब, जो नंबर 2 टीम हुई है यार उसका होना चाहिए ना, जनूबी अफ्रीका का होना चाहिए ना। अच्छा। लेकिन नहीं है, नहीं है। और किसी और टीम का कप्तान। और जो वो चीज़ मैं आपको सस्पेंस में रखूंगा। मैं चल रहा हूँ बॉटम टू टॉप, ठीक है जी। अब इस 8 कप्तानों की अच्छा, इसमें मयार उन्होंने क्या रखा? परफॉर्मेंस नंबर 1, नंबर 2 लीडरशिप, नंबर 3 स्ट्रेटेजिक ऑक्यूमेंट, ठीक है, नंबर 4 यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और इन सब को मिला के फिर ओवरऑल रेटिंग उन्होंने कैप्टेंसी बिल्कुल। तो जनाब इसमें नंबर 8 पे बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतू, और इसमें नंबर 7 पे अमेरिका के कप्तान एरन जॉन्स है। एरन जॉन्स पे आ गए, वो 7वें नंबर पे। अच्छा, नजमुल हसन शांतू की जो है आउट ऑफ 10 3.25 उनको मार्क्स दिए गए हैं, और एरन जॉन्स जो हैं उनको आउट ऑफ 10 3.75, ठीक है जी। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के, आप उनको कहीं और खड़ा कर रहे थे, मगर वो इन तमाम जो उनके कैटेगरीज थी उनके जब उनको देखा गया तो उनका जो है 4.25 छठे नंबर पे आए हैं। जी, छठे नंबर पे, और 4.25 आउट ऑफ 10। ओके। नंबर 5 पे वेस्ट इंडीज़ के कप्तान रोमन पॉल, इनके जी 4.5 जो है इनको 10 में से। जॉश बटलर हैं इंग्लैंड के, इनको 10 में से 5.25 नंबर्स जो है वो तजवीज़ हुए। नंबर 4 पे आए, चौथे नंबर पे आ गए। नंबर 3 पे एडम मार्करम जो है वो नंबर 3 पे जनूबी अफ्रीका के। अच्छा जी, इनके अब मैं आपको इनकी हर कैटेगरी में इनके पॉइंट्स बताऊंगा। एडम मार्करम को जनाब उनकी परफॉर्मेंस पे, ज़ाती परफॉर्मेंस जो है उनको 10 में से 5 नंबर्स, लीडरशिप पे उनको 10 में से 7, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक ऑक्यूमेंट, हिकमत अमली, किस तरह से मौके के एतबार से वो हिकमत अमली तरतीब देते रहे, उसके जो है उनको 7, और यूज़ ऑफ रिसोर्सेज उसमें उनको 10 में से 8 नंबर। ओवरऑल उनकी जो रेटिंग और उनको जो मार्क्स मिले वो 6.7, वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, पर्सनल। जी, ये पूरी परफॉर्मेंस मिला के उनकी चारों कैटेगरीज मिला के पोजीशन है 3rd। जी। अच्छा, नंबर 2 पे फिर जनाब आप समझ गए होंगे, 8 में से फिर कप्तान रोहित शर्मा अगर 1 है तो नंबर 2 पे कौन होगा? राशिद खान, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान जो है उनको जो है वो नंबर 2 है। आपने यार ये बोला था राशिद खान को, यार राशिद खान की कैप्टनसी को मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने बोला था राशिद खान अपनी टीम को ले गया सेमीफाइनल में। बिल्कुल। ये उसकी कैप्टनसी है। टीम वर्क जो था वो, अगर वो राशिद खान का साथ देता तो यार बैटिंग फ्लॉप होगी ना सेमीफाइनल। बिल्कुल। अच्छा जी, इनके जो है राशिद खान के परफॉर्मेंस पे उनको मिले हैं 10 में से 8 ऑफ द 10 सर, और उसके बाद में लीडरशिप पे भी उनको 8 10 में से 8, जबकि जो है इनको स्ट्रेटेजिक ऑक्यूमेंट जो है यानी हिकमत अमली उसमें भी 8 ही पॉइंट उनको आउट ऑफ 10, और यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जनाब उनको फिर जो है वो 8 ही मिले, और ओवरऑल भी उनके 8। रोहित शर्मा का ज़रा बताएंगे। रोहित शर्मा को जनाब परफॉर्मेंस पे उनकी 9 ऑफ द 10, नंबर 1 रोहित शर्मा, नंबर 1, और उनको टीम भी नंबर 1, कैप्टन भी नंबर 1, उनको 10 में से 9, और लीडरशिप पे भी 9 आउट ऑफ 10। स्ट्रेटेजिक ऑक्यूमेंट में इनको हिकमत अमली पे जनाब 8.5 8.5 पॉइंट्स मिले हैं, और यूज़ ऑफ रिसोर्सेज पे जो है वही 9 पॉइंट है इनको। ज़ाहिर इनके पास इतनी रिसोर्सेज थी, और उन्होंने बड़े यानी देखें जैसे जसप्रीत बुमराह को बड़े टाइम से लाते रहे, वो कुलदीप यादव को, अक्षर पटेल को कहाँ उन्होंने देखिए बैटिंग में ले आए,
फाइनल में उनसे जो है वो इसमें ये जो आपने रेटिंग बताई है जी, इनमें, इसमें पाकिस्तान के कप्तान हुआ करते थे बाबर आजम, जी जी उनका कोई जिक्र है? नहीं, ये सुपर 8 के सुपर 8 में जो आए हैं अच्छा। उनके अच्छा जी, सुपर 8। अच्छा जी। रोहित शर्मा के ओवरऑल जो हैं 8.87 मार्क्स उनको मिले हैं और इस तरह से वो नंबर 1 रहे। अच्छा, इसमें एक चलते चलते एक खबर और भी है, लेकिन शायद उसको फिर हम अगली वीडियो के लिए उठा के रख देते हैं जी। कि ये जो T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, इसके साथ कई महात्मा जो हैं रिकॉर्ड क्रिकेट के हम वो बता दें वो उन्होंने जो है क्रिकेट से रिटायरमेंट लोग ले ली हैं है। T20 से। मैं 3 बताऊंगा, 2 आप बताएं। जी, जरूर। ठीक है जी। जनाब, नंबर 1 तो विनिंग कप्तान इंडिया के रोहित शर्मा और फाइनल के मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। इन दोनों ने रविंद्र जडेजा तीन तो इंडिया के लोग 3 हैं। तो ये हो गए हाँ जी। और एक न्यूजीलैंड के जो है वो बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट जो है बोल्ट। वो हुए हैं। और 5वां आप बताएंगे, वार्नर। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, लेफ्ट हैंडर, जारहाना अंदाज से बैटिंग करने वाले। उन्होंने तो दरमियान में ही जो है जैसे उनकी टीम का सफर खत्म हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, उन्होंने रिटायरमेंट इसके साथ ही नाज़रीन हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। الدوف